Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about Article 32, the very important article of our Constitution that says that remedies for enforcement of the rights conferred by this part. Okay, so let's start with our video. Article 32 Clause 1 guarantees the right to move to the Supreme Court by appropriate proceeding. Okay, right to move to the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the fundamental rights. Okay, that is mentioned in the part 3rd of the Constitution. Now the clause 2 says that confers power on the Supreme Court to issue appropriate direction. Second is order, and third is writ, including writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. Okay, for the enforcement of any of the right conferred by part 3rd of the Constitution. Okay, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्लोज हो गए. नाउ इट इज़ टू बी नोटेड हेयर दैट पावर जो है, पावर हैज़ बीन गिवन टू इशू appropriate direction, orders or writs to the Supreme Court. The writs which the Supreme Court can issue, that includes the habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. It means the writ beside these 5 writs can also be issued. ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हम कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बोला डायरेक्शन हम दे सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं और रिट्स दे सकते हैं. रिट्स आर ऑफ 5 टाइप्स जो मैंने बता दिया आपको. ठीक है, फर्दर द कोर्ट कैन इशू द रिट्स इन द नेचर ऑफ, जो मैंने बताया, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्चरी. द कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू इशू दीज रिट्स. बाउंड नहीं है, वो कुछ भी इशू कर सकता है, डायरेक्शन, ऑर्डर्स और रिट्स. ओके, नाउ आर्टिकल 39 क्लोज 3 विदाउट प्रीजुडाइस टू दी power conferred on the Supreme Court by clause 1 and 2, Parliament may by law, now here comes in picture, Parliament may by law empower any court to exercise within the local jurisdiction of all or any power exercisable by the Supreme Court. अब पार्लियामेंट एक लॉ बना देगा, उसके थ्रू जितनी भी रिट जुरिडिक्शन या जो ये डायरेक्शन पास कर था हमारा या हमारे ऑर्डर्स दे रहा था, ये वाली पावर वो अदर कोर्ट्स को भी दे सकता है. ये सेम पावर किसी और कोर्ट को भी दे सकता है. ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 32 क्लॉज 3 में बोला गया. नाउ कम्स द आर्टिकल 32 क्लॉज 4 सेज दैट द राइट ग्रांटेड बाय आर्टिकल 32 शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यानी जब हमारी नेशनल इमरजेंसी होगी तब हमारा ये राइट एक्सटिंग्विश हो सकता है. ठीक है, नाउ आर्टिकल 32 क्लॉज 1 द सुप्रीम कोर्ट पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स इज वाइडेस्ट. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग में हम कोई भी बस प्रोसीडिंग जो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं दे रखी उन्होंने. जैसे बस यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कि जो प्रोसीडिंग है डेट मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड दिस रिक्वायरमेंट मस्ट बी जज इन द लाइट ऑफ द पर्पस ऑफ विच द प्रोसीडिंग इज टेकन. ठीक है, it is clear from the article 31 clause 1 that whenever there is a violation of the fundamental rights any person can move to the court for the appropriate remedy. ठीक है, now the next question is power of the parliament to enlarge the writ jurisdiction of the Supreme Court. Now the parliament has the power to enlarge the writ jurisdiction of the Supreme Court. कैसे? अंडर आर्टिकल 139. अब 139 के अंदर जो पार्लियामेंट है मे बाय लॉ कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स. ये हमारे 32 क्लॉज 2 में देखा था मैंने, इंक्लूडिंग ये सब कुछ जो भी हमारे हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, क्यू वारंटो और सर्चरी है, और एनी ऑफ देम फॉर द एनी पर्पस अदर देन दोज मेंशन्ड इन द क्लॉज 32 क्लॉज 2. यानी फंडामेंटल राइट्स के वोलेशन के अलावा भी हम किसी और मैटर्स में भी रिट इशू कर सकते हैं, बट दैट हैज़ टू बी in accordance with the law passed by the parliament. Okay, for giving similar jurisdiction to the Supreme Court the need is of the law made by the parliament and there is no need of the amendment in the constitution. बस लॉ बनवा दो, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है. Now the same writ jurisdiction is also given under आर्टिकल 32 एंड 226. 226 को हम जो हाई कोर्ट किया है उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, और जो ये 5 रिट्स हैं इसको हम हर वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे. जैसे हैबियस कॉर्पस की एक वीडियो बनेगी, क्यू वारंटो की एक वीडियो बनेगी, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे. इसमें हम सिर्फ आर्टिकल 32 को डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ
Now, there was a point raised before the Supreme Court that judicial review of the decision taken on the basis of the expert opinion. ये कौन से केस में होता? ये केस था हमारा वीरपाल सिंह वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये इसमें था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड नॉट वर्शिप। अगर कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन है उस पर जुडिशली भी हो सकता है, कोर्ट ने बोला कि वो एक वर्शिप है, वो एक ओपिनियन है दैट डिजर्व रिस्पेक्ट बट नॉट द वर्शिप, एंड द कोर्ट एंड द अदर जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल फर्म्स एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ डिसाइडिंग द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द प्री मेच्योर रिलीज डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। ये केस था, उसमें बोला गया था कि एक्सपर्ट ओपिनियन की हमारी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। ओके, नाउ एक्सरसाइज ऑफ द जुडिशियल पावर। अब जुडिशियल पावर जो है हमारी, अगर बाई चांस किसी स्टेट में सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, तो उसमें भी हमारे डिक्लेरेशन पास कर सकता है। नाउ दिस वाज द केस वाज स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला गया था कि अगर बाई चांस किसी भी स्टेट में, किसी भी हमारी मतलब किसी भी स्टेट में या हमारी कंट्री में कोई भी ऐसी सिचुएशंस आ गई जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हमारी डिक्लेरेशन दे सकता है। नाउ इन द व्यू ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशली कैन एंड मस्ट कंसिडर इशूइंग एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट इफ़ दे फेल टू रिस्पॉन्ड टू डेवलप क्राइसिस, और द क्राइसिस सिचुएशन को वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ पे उनको डिक्लेरेशन या डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो इज एलिगेशन ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन। नाउ दिस वाज द केस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये वाला केस था, ये काफ़ी बड़ा केस है जिसमें कि मणिपुर पुलिस भी इन्वॉल्व थी। उन्होंने मतलब बेगुनाहों को गोलियों से मार दिया था और जो विक्टिम्स वगैरह थे वो कोर्ट के अंदर गए थे। तो ये वो केस है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दी रिट पटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो मेंटेनेबल रहेगी, इसलिए नहीं क्योंकि इट वाज नॉट अ सिंपल केस ऑफ FIR नॉट बीइंग रजिस्टर्ड, और मणिपुर पुलिस ने FIR रजिस्टर नहीं की थी। तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिकली अगर FIR रजिस्टर नहीं, सिर्फ इस बेसिस पे हम नहीं कर पा रहे, हम रिट नहीं एंटरटेन करें, और भी काफ़ी रीजन है जिसकी वजह से हम रिट एंटरटेन करेंगे। तो आप एक बार इस केस को देख लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज, नाउ subsequent writ petition to the Supreme Court when earlier writ petition is still pending before the High Court। अगर बाई चांस हमारी हाई कोर्ट के सामने एक रिट पटिशन पेंडिंग है, ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन नहीं लगा सकते, ये सिंपल एक बेसिक रूल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आया हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। द ट्रेडिशनल रूल इज दैट राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इज ओनली अवेलेबल टू दी जिसके फंडामेंटल राइट जो इन्फ्रिंज हुए हैं, ठीक है। द पावर वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये तो पता है आपको। द राइट अंडर विच द रेमेडीज आस्क्ड अंडर आर्टिकल 32 मस्ट को रिलेटेड टू दी वंस फंडामेंटल राइट sought टू बी इन्फोर्स्ड, ओके। द रेमेडी मस्ट बी sought थ्रू द एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, ठीक है, ये बोला गया इसमें। ये हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी कि जिस पर्सन की इन्फ्रिंजमेंट हुई है वही जा सकता है सिर्फ रिट के लिए, लेकिन अब नई और एक डायनेमिक अप्रोच चाहिए जिसको हम कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नाउ इन PIL जो अब ट्रेडिशनल जो रूल था वो ख़त्म हो गया और अब एक नया आ गया रूल जिसे हम PIL कहते हैं। द कोर्ट नाउ परमिट्स PIL और द सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन एट द इंस्टेड ऑफ द पब्लिक स्पिरिट सिटीजन्स। इसमें नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जैसे जज ट्रांसफ़र केस आ गया जिसमें कि कोर्ट ने बोला था कि सफिशिएंट इंटरेस्ट होना चाहिए उस इंसान का भी, उसकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन या पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं होने चाहिए। अगर सफिशिएंट इंटरेस्ट है तो ही PIL फाइल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। और इसमें काफ़ी फुल फ्लैश गाइडलाइंस भी दी गई थी, जैसे अब्यूज़ ऑफ द PIL नॉट बी अलाउड। इसमें था कि बोनाफाइड इंटरेस्ट होना चाहिए, पर्सनल गेन नहीं होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉफिट, पॉलिटिकल मोटिवेशन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हमारी PIL फाइल कर सकते हैं हम। इसमें काफ़ी अच्छे केस हैं, और जैसे MC मेहता केस आ गया जिसमें कि डिटेल व्यू दी गई थी। तभी हम MC मेहता वाला केस देखते हैं।
नाउ इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट द पुअर इन इंडिया, जो गरीब लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो एक लेटर लिख दें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को जरूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर जज को एड्रेस दो, जरूरी नहीं है, उसको हम एंटरटेन कर देंगे एज अ PIL, जिसमें कि कोई भी सोशल इविल या कोई भी ऐसी जो दिक्कत आ रही है उसको हम देखेंगे। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट अंडर आर्टिकल 32 इट हैज़ द पावर टू ग्रांट रेमेडियल रिलीफ, रेमेडियल रिलीफ भी देगा उनको, विच इंक्लूड्स द पावर टू ग्रांट कंपनसेशन इन द अप्रोप्रिएट केस, कंपनसेशन देगा जिसे रेमेडी देगा उसको। और उसके बाद कोर्ट ने से बोला कि हम एक सोशो लीगल कमीशन भी बनाएंगे ताकि हम सोशल चीज़ों को देख पाएँ और उनको सॉल्व कर पाएँ बाय द वे ऑफ PIL। Now the court has said that the court must encourage genuine and bona fide PIL, और डिस्करेज करना चाहिए जहाँ पे हमारा पॉलिटिकल मोटिवेशन है या कोई पर्सनल प्रॉफिट के लिए कर रहा है। इंस्टेड ऑफ एवरी इंडिविजुअल जज डिविजिटिंग हिज ऑन प्रोसीजर, हर जज जो है अपना ऑन प्रोसीजर बना रहा है PIL को सुनने का, इससे बढ़िया कोर्ट ने बोला कि एक फुल फ्लैज इसका रूल्स बनाए जाए बाय द सुप्रीम कोर्ट और बाद में उस बाय द हाई कोर्ट और बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए फॉर द कन्फर्मेशन। The court should prima facie verify the credentials of the petitioner before entertaining a PIL। उसके बाद कोर्ट को prima facie satisfy होना पड़ेगा regarding the correctness of the content of the petition before entertaining a PIL। The court should be fully satisfied that substantial public interest is involved। ये सब conditions होनी चाहिए तभी हमारा PIL हम entertain करेंगे। अब PIL जो है वो हेट स्पीच पर नहीं हो सकता, किसी ने अगर हेट स्पीच दिया तो उसके खिलाफ हम PIL नहीं लगा सकते। कोर्ट ने बोला कि उसके लिए हमारे IPC में काफ़ी सेक्शंस दे रखे हैं, उसके अंदर उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। दिस वाज द केस ऑफ जाफ़र इमाम वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।